बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। Second year. Subject is mathematics and the teacher name is Hamad Hussain. Today we will solve chapter number 1, exercise 1.3, limit and function. Our first topic is theorem number 1, that is limit x approaches to a x n minus a and divided by x minus a is equal to n a raised to power n minus 1 where n is an integer. We have two different cases. First of all, we will discuss when n is a positive integer. If we directly replace x is equal to a to left hand side, we will get 0 by 0 form. As we discussed earlier that when we have 0 by 0 form, we have to use some algebraic techniques. Here we can write xn minus a raised to power n is equal to x minus a into x raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus a x raised to power n minus 2 plus a square into x raised to power n minus 3 plus so on up to a raised to power n minus 1. Here is n minus 3. You can simply explain above formula by comparing it with a square minus b square, which can be written as a minus b into a plus b, or a cube minus b cube, which can be written as a minus b a square plus a b plus b square. This equation, this formula is the generalized form of a cube minus b cube, or a square minus b square divided by x minus a on both sides and applying limit x approaches to a to left hand side as well as right hand side. X minus a cancel out with this x minus a, we will get simple expression limit x approaches to a x raised to power n minus 1 plus a x raised to power n minus 2 plus a square x raised to power n minus 3 so on to a raised to power n minus 1. Now just replacing x by a, x by a, x by a, and so on. A raised to power n minus 1 as it is, a into a raised to power n minus 2. As you know that if we have same basis, then power will become add. So n minus 2 plus 1 is n minus 1. Same here, n minus 3 plus 2 is equal to n minus 1 plus so on to a raised to power n minus 1. As we've seen that n minus 1 arrives n times, so it can be written as n a raised to power n minus 1, which is our right hand side. This is our case number 1 when we have a positive integer n. Now, suppose n is a negative integer. Say n is equal to minus m, but here m must be positive integer itself. M must be itself a positive integer. Now, x raised to power n minus a raised to power n, our x minus a can be written as x raised to power minus m, just replacing n by minus m, minus a raised to power n, a raised to power m, here also replace n by minus m. X raised to power minus m can be written as 1 over x raised to power m, and this can be written as 1 over a raised to power m. After taking LCM, we will get minus 1 over x raised to power m into a raised to power m, x raised to power m minus a raised to power m over x minus a. Now applying limit on both sides, limit x approaches to a and limit x approaches to a. Minus 1 over a raised to power m and a raised to power m. This is our first case, just difference of n and m. In first case, when we have x raised to power n minus a raised to power n over x minus a, answer is n a raised to power n minus 1. Here same situation but difference of n and m, so it can written as m a raised to power m minus 1. A raised to power m and a raised to power m, if bases are same then power add, so m plus 1. If this m goes to the m plus m, that is 2m. So minus m a m minus 1 minus 2m, that can be minus m minus 1.
So back substitute by minus m is equal to n, minus m is equal to n, minus m is equal to n. We will get our required result, that is n a raised to power n minus 1. Now we will move to exercise 1.3 question number 2 part number 9, which is the only part of related to that theorem. Question is, limit x approaches to a x raised to power n minus a raised to power m n over x raised to power m minus a raised to power n. Applying the binomial theorem condition, x raised to power n minus a raised to power n according to theorem, that can written as x minus a, x raised to power n plus x raised to power n minus 2 into a plus x raised to power n minus 3 into a square plus so on to a raised to power n minus 1. Similarly, denominator can be written as x minus a, x raised to power n minus 1 plus m minus 2 into a plus x raised to power n minus 3 into a square plus so on. X minus a and x minus a cancel out. Now simply substitute x by a. A raised to power n minus 1, a raised to power n minus 2 into a plus a raised to power n minus 3 into a square plus so on to a raised to power n minus 1. A raised to power m minus 1 plus a raised to power m minus 2 into a plus a raised to power n minus 3 into a square plus a raised to power m minus 1. Again, if bases are same, then power at n minus 2 plus 1 is n minus 1, n minus 3 plus 2 into n minus 1. Similarly, m minus 2 plus 1 into m minus 1, m minus 3 plus 2 into m minus 1, and so on. In numerator, a raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 plus a raised to power n minus 1 and so on to a raised to power n minus 1, and then so it can written as n a raised to power n minus 1. In denominator, a raised to power m plus minus 1 plus a raised to power m minus 1 plus a raised to power m minus 1 so on to a raised to power m minus 1 m times, so it can written as m a raised to power m minus 1. N by m, my m minus 1 when goes to the numerator will become minus m plus 1. 1 and minus 1 cancel out. So n over m, a raised to power n minus m is our final answer. You can see the calculation. Now, question number 3, which is very important question, evaluate the following limit. Limit theta approaches to 0, 1 minus cos theta divided by sine theta. We can solve it when we just replace theta equal to 0 cos 0 is equal to 1, 1 minus 1 0 sine 0 is 0, it will become 0 by 0 form. As we discussed earlier that when we have 0 by 0 form, we have to use some algebraic technique. Here we will use rationalization method, 1 minus cos theta. So rationalize 1 plus cos theta divided by 1 plus cos theta. Numerator will become 1 minus cos square theta and denominator as it is. As we know that 1 minus cos square theta is equal to sine square theta. Sine theta cancel with the single power of sine square theta. So sine theta divided by 1 minus cos theta. Now replace the value of theta that is approaching to 0. Sine 0 divided by 1 plus cos 0. Sine 0 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. 0 by 2 answer is 0. 0 by 0, 0 by 2 answer is 0. The next part is part number 12. Limit theta approaches to 0, tan theta minus sine theta divided by sine cube theta. If we directly replace theta is equal to 0, so tan 0 minus sine 0, 0 divided by 0, it will become 0 by 0 form. So we have to use some algebraic technique. Tan theta can be written as sine theta over cos theta, sine theta as it is, sine cube theta as it is. Taking LCM, numerator in the numerator, sine theta minus sine theta cos theta divided by cos theta. This cos theta multiply with sine cube theta. Taking sine theta common from the numerator, and this sine theta cancel with the power of sine cube. The remaining is limit theta approaches to 0, 1 minus cos theta over sine square theta into cos theta. Again rationalize 1 minus cos theta, so multiply by 1 plus cos theta and divided by 1 plus cos theta.
1 minus cos theta into 1 plus cos theta become 1 minus cos square theta divided by 1 plus cos theta and sin square theta as it is. 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. Cancel with the sin square theta of denominator. The remaining equation is 1 over cos theta into 1 plus cos theta. Now we can easily replace theta is equal to 0, 1 over cos 0 plus into 1 plus cos 0 is 1 and this cos 0 is equal to 1. So 1 by 2 is our final answer. So 1 by 2 is our final answer. These two questions are the questions that are now related to this condition or theorem. Now our next topic is sandwich theorem. Let us suppose that we have three different functions f, g and h such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all number x in some open interval containing c except possibly at c. जैसा कि नाम से बता रहा है सैंडविच सैंडविच में दो स्लाइस के बीच में कोई चीज़ डाली जाती है इसी तरह दो फंक्शंस के दरमियान में जो फंक्शन हो उसका कंडीशन को हम लोग सैंडविच कंडीशन कहते हैं और उससे जो थ्योरम भी हम इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम. Condition is f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x. If limit x approaches to c f of x is equal to L and limit x approaches to c h of x is equal to L, then limit x approaches to g of x is also equal to L. मतलब कि अगर g of x f of x का आंसर भी L आ रहा है हमारे पास और h of x का आंसर भी आ रहा है L तो g of x का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा L. क्यों? क्योंकि g जो है वो मिड में है सैंडविच बना रहा है किन दो के दरमियान f और h के दरमियान. अगर f भी L है और h भी L है तो g भी हमारे पास क्या होगा L ही होगा. इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैंडविच कंडीशन और इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम. अक्सर स्टूडेंट ये जो थ्योरम है जिसका एक्चुअल नाम है स्क्वीज थ्योरम इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम जबकि इसको सैंडविच थ्योरम नहीं कहा जाता. सैंडविच थ्योरम ये वाला थ्योरम है हमारे पास और ये जो थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वीज थ्योरम. इसकी क्या है हमारे पास इफ थीटा इज मेजर इन रेडियन as you know that two units used for theta. One is degree and second is radian. If theta is measured in radian, then limit theta approaches to 0 sin theta by theta is equal to 1. अगर sin theta by theta हो theta approaches to 0 हो तो उसकी जगह just direct हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं. Now we will move toward its proof. To evaluate this limit, we apply a new technique that it take a theta positive acute central angle of a circle with radius r is equal to 1. Here we have radius r is equal to 1 as shown in figure OAB represent a sector of a circle given that OA is equal to OB is equal to 1. OA is equal to OB that is unit circle of radius 1. Unit circle mean radius 1. हम क्या करते हैं जी हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है O और एक उसका कॉर्नर है हमारे पास A पे दूसरा उसका कॉर्नर हमारे पास बन रहा है B पे. तो O से A का डिस्टेंस जो है वो भी हमारे पास 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है रेडियस 1 है और O से B का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास कितना आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो हमने आर्क ले ली थी ओ ए बी ओ बी को ज्वाइन किया सी के साथ इसको एक्सटेंड किया और डी को भी ज्वाइन कर दिया किसके साथ ए के साथ. अब यहाँ हमारे पास तीन केसेस बन रहे हैं एक ट्रायंगल बन रही है ओ सी बी एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए डी और एक आर्क बन रही है ओ ए बी. एक आर्क बन रही है या सेक्टर बन रहा है हमारे पास ओ ए बी. एक ट्रायंगल बन रही है ओ सी बी एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए डी और एक सेक्टर बन रहा है हमारे पास ओ ए बी. फिगर आपने समझिए ये एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का यहाँ भी 90 डिग्री है और इधर भी हमारे पास 90 डिग्री बन रही है. In triangle OCB,
इन ट्रायंगल ओ सी बी हम यहाँ साइन थीटा की रेशियो यूज करेंगे सम पीपल हैव ओ सी बी तो साइन थीटा क्या आते हैं जी परपेंडिकुलर अवर बेस सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज बी सी अवर ओ बी ओ बी जो है वो हमारे पास 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी बी सी के इक्वल आ जाएगा सिमिलरली ओ ए डी ओ ए डी जो फुल ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए डी कंप्लीट ट्राइंगल है इसकी हम लोग रिलेशन निकालेंगे बाय tan थीटा इज perpendicular through proper brushing perpendicular our base AD our OA तो OA 1 है OA जो है वो हमारे पास 1 है तो लिहाजा तो ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AD के इक्वल आ जाएगा in term of theta the area as explained produce CBOB to D and AD perpendicular to AE draw BC perpendicular to AB join AB स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक हमारे पास बन रहा है एरिया ओ सी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट तो ओ ए जो है वो हमारे पास बेस है और हाइट इसकी क्या आ रही है हमारे पास बी सी हाइट हमारे पास क्या आ रही है बी सी डेट इज साइन थीटा ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं इसकी 1/2 बेस इंटू हाइट बेस कितनी है 1 है और हाइट कितनी आ रही है BC तो BC ऊपर हमने बताया है वो किस चीज के इक्वल है हमारे पास साइन थीटा के इक्वल है सो एरिया इस पोर्शन का ओ सी बी का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/2 साइन थीटा नो एरिया ऑफ सेक्टर ये जो पोर्शन बन रहा है ओ ए बी सेक्टर का सिंपल वर्ड में समझने के लिए ये है कि केक या पिज्जे के जो हम लोग पीसेस बनाते हैं जो एक पीस होते हैं उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने इसका पढ़ा था एरिया सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा सेम वो यहाँ भी यूज होगा बट आर 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू थीटा अब ये जो पूरी कंप्लीट ट्राइंगल बन रही है ओ ए डी इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ओ ए डी पे 1/2 बेस इंटू हाइट बेस ओ ए है इसकी तो वो कितनी थी 1 और ए डी जो था वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था ए डी किसकी इक्वल आता है tan थीटा की इक्वल आता है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan थीटा के स्टूडेंट्स आप फिगर से देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल है फिर इसके बाद सेक्टर है ओ ए बी फिर उसके बाद बड़ी ट्राइंगल है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ओ ए बी छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से वो छोटा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी नहीं है यहाँ हमारे पास आएगा ओ सी बी इस जगह ठीक कर लीजिएगा यहाँ हमारे पास आएगा ओ सी बी ये लेस देन होगा किससे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से और वो लेस देन होगा किससे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से तमाम की वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1/2 साइन थीटा एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा था ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1/2 थीटा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी आ रहा था 1/2 इंटू थीटा 2 एंड 2 आल्सो कैंसल आउट हो जाएंगे एज साइन थीटा इज पॉजिटिव सो ऑन डिवीजन बाय 1/2 sin theta we will get 1 is less than or equal to sin theta is less than cos theta 1 is less than sin theta थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख लें हमने जो चीज प्रूव करनी है उसमें साइन थीटा और थीटा का रिलेशन बन रहा है साइन थीटा और रिलेशन बन रहा है थीटा का रिलेशन बन रहा है ये आ रहा है 1/2 साइन थीटा इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन 1/tan थीटा अगर आपको ये डिवीजन वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले स्टेप में ये सारे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे साइन थीटा एज इट इज लिखा रहा है इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा की जगह आप लोग लिख दें साइन थीटा अवर कॉस थीटा साइन थीटा अवर कॉस थीटा और फिर डिवाइड कर दें साइन थीटा के साथ तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा 1 इज लेस देन साइन थीटा अवर साइन थीटा इज लेस देन 1 अवर कॉस थीटा
आपको पता है जब इनइक्वालिटीज चेंज होती हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा व थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1। जब हम थीटा, यार ये तो हमने चीज प्रूव करनी है, इस पे तो हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने लिमिट भी इसमें अप्लाई करनी है। इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। 1 जो है वो साइन थीटा व थीटा से बड़ा है, और साइन थीटा व थीटा किससे बड़ा है, 1 से। मीन्स डैट साइन थीटा व थीटा जो है वो सैंडविच बना रहे हैं बिटवीन 1 एंड क्वांटिटी अप्रोचिंग टू 1। अकॉर्डिंग टू सैंडविच कंडीशन, this will become theta limit theta approaches to 0 sin theta व theta is equal to 1। 1 is greater than sin theta व theta is greater than cos theta। अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो 1 तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट रिप्लेस हो नहीं सकती। इज ग्रेटर देन, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और इसमें जब पुट करेंगे तो ये भी जाएगा 1 पे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 के बीच में कोई नंबर है। तो क्या रियल लाइफ में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो 1 के से बड़ा भी हो और 1 से छोटा भी हो? आंसर इज नो। तो वो सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो सिर्फ क्या होगी, 1। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है पॉइंट, क्योंकि आगे काफी ज्यादा क्वेश्चंस में ये हमारे पास कंडीशन यूज होगी, साइन थीटा व थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाय x। रिप्लेस डमी वेरिएबल दैट शुड बी t इज इक्वल टू 7x। इसकी जगह तो हमारे पास आ गया 7x, बट इस x की जगह क्या आएगा, इस x की जगह आ जाएगा जी t बाई 7। कंडीशन, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएंगे तो लिमिट हमेशा चेंज होगी। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे तो लिमिट हमेशा चेंज होगी। अब यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, x से हम लोग जा रहे हैं t की तरफ, तो लिमिट भी हमारी x से किस में जानी चाहिए, t में जानी चाहिए। x अप्रोचेस टू 0 था, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, या x में x की जगह 0, इसमें x की जगह 0 पुट करें तो t का भी आंसर क्या आएगा, 0। या इधर x की जगह 0 पुट करें तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब हमारे पास सारा क्वेश्चन चेंज होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई x था, तो लिमिट हो जाएगी t अप्रोचेस टू 0 साइन 7x की जगह आ गया t, और नीचे वाले x की जगह हमने वैल्यू निकाली थी, क्या आ रही है, t बाई 7। 7 ऊपर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर। पीछे पास क्या, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t एवर t, सेम वही कंडीशन है, बट इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया है, t, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज किसकी इक्वल होगी, 1 के। 7 इंटू 1 आंसर इज 7। 7 इंटू 1 आंसर इज 7। तो ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बट एक बात आप लोगों ने जस्ट याद रखनी है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x बाय पाई माइनस x। जब हम डायरेक्ट इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन पाई होता है 180 और 180 होता है 0, और पाई माइनस पाई आंसर है 0, तो ये भी बन जाएगा 0 बाई 0 की फॉर्म। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट करते हैं t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। t इज इक्वल टू पाई, मतलब इसकी जगह तो हमारे पास आ जाएगा t। अब मसला आ रहा है इस x का, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई माइनस टी। ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और टी इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों की तो सेटिंग होगी। अब हमने लिमिट भी चेंज करनी है, हम नया वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जब x पाई को अप्रोच कर रहे हैं, इस इक्वेशन में x की जगह पाई पुट करें तो t किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो नई लिमिट बन जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस टी, और पाई माइनस एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, टी। साइन पाई माइनस टी। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, अलाइड एंगल जब हमने यूज किए थे 180 पे चेंज नहीं होती, तो साइन पाई माइनस टी क्या आ जाएगा, टी, और 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास सिंपल रिजल्ट आ जाएगा साइन टी। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin t by t, तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये किस चीज की इक्वल होगा,
1 के इक्वल होगा। नॉट सैंडविच थ्योरम अकॉर्डिंग टू स्क्वीज थ्योरम। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसको सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम नहीं पढ़ना, ये स्क्वीज थ्योरम होता है। या सिंपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू साइन थीटा व थीटा इक्वल टू 1 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अगर हम इसकी जगह डायरेक्ट 0 रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 ओवर 0, तो ये बन जाएगा 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। 1 माइनस cos 2x, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ax के इक्वल लिखेंगे। Dear students, our next question is limit theta approaches to 0 1 minus cos p theta over 1 minus cos q theta. As you know that half angle identity is chapter number 10 sin square x by 2 is equal to 1 minus cos x by 2. 1 minus cos x by 2, तो ये 1 minus cos x है तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 minus cos p theta की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 sin square p theta by 2 and 2 sin square q theta by 2। अब जब हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 0/0 की फॉर्म में, तो उसको हम लोगों ने खत्म करना है। यहाँ हमारे पास एंगल आ रहा है p थीटा बाय 2 और साइन के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। यहाँ आ रहे हैं क्यू थीटा बाय 2 और साइन के ऊपर आ रहा है स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में ये 2 और 2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 एंड 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 लेते हैं। अब ये साइन पी थीटा बाय 2 है तो इसको हम लोग आगे जाके लिखेंगे साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। तो मतलब कि मुझे पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी। तो ये जो डिवीजन वाला है ये साइन के नीचे चला जाएगा, इसी तरह ये डिवीजन वाला है इसके नीचे चला जाएगा, बाकी बचेगा पी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, इधर बच जाएगा क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2। ये साइन के ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 अवर क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू थीटा स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। ये थीटा स्क्वायर बाय 4 और थीटा स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा लिमिट से, इन दोनों पे अलग-अलग लिमिट्स अप्लाई होंगी। तो ये देखें दोबारा वो स्क्वीज थ्योरम वाली कंडीशन बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा व थीटा 1 होता है। यहाँ हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस टू 0, ये एक्स नहीं है ये हमारे पास थीटा है, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये चेक कर लीजिएगा। ये सारे में हमारे पास थीटा और क्वेश्चन में थीटा है, यहाँ आगे भी सारों में हमारे पास लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0। तो साइन पी थीटा बाय 2 अवर थीटा बाय 2 होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर आ रहा है साइन क्यू थीटा बाय 2 अवर क्यू थीटा बाय 2 थीटा अप्रोचेस टू 0 होल स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अवर क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आप लोगों के असाइनमेंट हैं प्रैक्टिस नाउ 1 जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अवर एक्स स्क्वायर, इससे रेलेवेंट हमने क्वेश्चन भी किया है। जब हम डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0/0 की फॉर्म में। तो इसका मैं आपको हिंट देता जाऊं, इसको आप लोगों ने रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट x माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म दे देगा, तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है बाय रैशनलाइजेशन मेथड। कोसेकेंट की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 ओवर साइन, कॉट की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉस ओवर साइन, एलसीएम ले लेंगे, ये वाली सिचुएशन बनेगी, आगे रैशनलाइज करेंगे। ये मैं आपको हिंट दे दी, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है।
any question. If you have any question, you can ask me any time. Thank you.